Hello and welcome students. Welcome to the learning session number 3 of chapter 4, which is environmental management of science 2. Okay, so these are the topics we have covered so far. We have seen ecosystem, food chain, food web, then we saw trophic levels, energy pyramid, and in the last learning session we saw relationship between environment and ecosystem. Okay, so an environment will contain many ecosystems within it and factors that will affect the environment. So these things we have seen so far, and these are the things we're going to cover today. Let me take out my laser pointer. Okay, so topics we're going to cover today are: first is environmental conservation, pollution and its type. We have already seen pollution and its types. We are just going to revisit it, and maybe we can arrange them in a good tabular form. And lastly, we'll see pollution control. So these are the new words we're going to learn today. First word is derivative, second is silt, third is pathogen, and fourth is ulceration. I'll repeat that word, ulceration. So these are the four words you are going to learn today. So first let us begin by quickly filling this table. We've already seen various factors affecting the environment in our last learning session, right? You have already noted these things in your notebook. So there is an observe and fill the information given in page number 36 of your textbook. Okay, so just go back in your notes and see where you have written various natural factors affecting environment and various man-made factors affecting environment. They have given one example. One natural factor ka example is earthquake. One man-made factor ka example is deforestation. So all we have seen both of these in detail in the last learning session. Now just go back and refer your notes and complete this table. Okay. Again, I'll wait for 5 seconds for you to pause and complete this table. And if you can think of any new factors which come to your mind, you can add those as well. Okay, so I'll wait for 5 seconds. Okay, I hope you all paused the video and have filled this table. So let us see various things you all could have written here. So natural factors where one earthquake was already given. We could have written flood, any baad, drought we had seen last time. Drought means if there's no rain for 2-3 years straight, then you have drought. Cyclone we had recently seen. मुंबई से बस सब बच के चला गया था एक cyclone. वरना मुंबई में cyclone का warning आया था. So that's a cyclone. Storm, volcanic eruptions, landslides. Okay, so these are examples of natural factors, and man-made factors के example है. Deforestation already दिया था. Population explosion we had seen last time. Over exploitation of natural resources. Okay, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स यानी बहुत ज्यादा यूज करना, कोई लिमिट में नहीं रहना, लिमिट के बाहर उसको यूज करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज खड़े करना बहुत जल्दी. एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन अगेन वी हैड सीन लास्ट टाइम. अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज बनाना, एंड माइनिंग. So these were various examples of natural factors and man-made factors affecting the environment. Let us move ahead. You're going to see environmental conservation. Okay, so the first point is contamination of any material is its pollution. Contamination मतलब क्या? Contamination मतलब खराब हो जाना. So say for example you have water and water में थोड़ा मिट्टी गिर गया. So what will you say? You will say that this water is contaminated, or you could also say it is polluted. Okay, so what is pollution? Pollution is basically contamination of any material. Next, they've given a definition of environmental pollution. Okay, so environmental pollution का क्या definition है? Direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other beings, living beings, is environmental pollution. Okay, या तो डायरेक्ट चेंजेस हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट चेंजेस. किस में चेंजेस होंगे, किस टाइप के चेंजेस होंगे? फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल. फिजिकल का क्या हो सकता है एग्जांपल? फिजिकल का टेम्परेचर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है अचानक आ गया. केमिकल में अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कोई वायरस आ सकता है. फिर बाद में
किस में चेंजेस होने चाहिए, एयर, वाटर या सॉइल में, और इससे क्या होगा, इससे हार्म, इट विल बी हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स. सो if such a thing happens, then it is called as environmental pollution. Okay, that's the definition of environmental pollution. Make sure you all are by hearting this. Okay. Next, various reasons like population explosion, fast industrialization, indiscriminate use of natural resources, deforestation, and unplanned urbanization are responsible to environmental pollution. We had seen this point in detail in the last learning session, so I'm not going to explain it. Okay. Next, various types of pollution are air, water, sound pollution. For example, अगर घर के बाहर बहुत बड़ा बैंड बाजा बारात जा रहा है, तो आवाज अगर बहुत ज्यादा होगा, विल कॉल इट एज साउंड पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी सब उड़ जाना हवा की वजह से, डेजर्ट बन जाना, या फिर मिट्टी में कोई हार्मफुल केमिकल मिक्स हो जाना. ऑल दो एग्जांपल्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन यानी बहुत ज्यादा गर्मी होना या फिर टेम्परेचर कम ज्यादा होना, दैट्स कॉल्ड एज थर्मल पोल्यूशन. लाइट पोल्यूशन यानी रात के समय बहुत ज्यादा लाइट्स आ रहे हैं तो हमारी आंखों को रेस्ट नहीं मिलता, सो दैट्स लाइट पोल्यूशन. So these are various types of pollution. They have adverse effect on the existence of all living beings, not just humans, but सारे living beings पे affect होता है. Hence environmental conservation has become the need of the hour. So तुम लोग को एक question पूछ सकते हैं, why is environmental conservation become the need of the hour? Need of the hour मतलब बहुत ज्यादा urgent है, तुम लोग को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इतना अर्जेंट है. सो उसका मतलब है नीड ऑफ द आवर. सो the question can be why environmental conservation has become the need of hour. Okay, let me just drink some water. In the classroom when I teach, I get some time because I'll get some time to read the slides, right? But when I'm recording a video, I don't get any time. मुझे continuously बोलते रहना पड़ता है, तो मेरा गला बहुत दर्द करने लगता है at the end of it. So even in maths, मैं जब बोर्ड पे sum solve करता हूँ, I'm not speaking in between ना, but here I have to continuously speak. Okay, let us move ahead. So this is a complete chart given on page number 39 of your textbook. Okay, so इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें अगर तुम लोग ने देखा होगा यहाँ पे जो दिया है, ये सब अलग अलग टाइप्स के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. ओके, और यहाँ पे उसके अलग अलग पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट के कंपोनेंट्स कि एयर पोल्यूशन में क्या क्या होता है, वाटर पोल्यूशन में क्या क्या होता है यहाँ पे लिखोगे, सॉइल पोल्यूशन में क्या क्या होता है यहाँ पे लिखोगे. नेक्स्ट सोर्स मतलब कहाँ से आ रहा है. सो एयर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, वाटर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, ऑलरेडी दे दिया है. एंड सॉइल पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तुम लोग यहाँ पे लिखोगे. नेक्स्ट इफेक्ट यानी इसकी वजह से क्या होने वाला है. सो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा यहाँ पे लिखोगे, वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा यहाँ पे लिखोगे, सॉइल पोल्यूशन से क्या क्या होता है यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया. एंड देन कंट्रोल मेजर्स यानी इसको कंट्रोल में लाने के लिए तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, ये तुम लोग लास्ट रो में लिखोगे. ओके, सो अगेन यहाँ पे कुछ नया नॉलेज तुम लोग को नहीं मिल रहा. ऑल दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. You have seen types of pollution, you all must have already seen its effects and control measures. उसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हो, you all also must have some idea. So try to solve this by yourself. Again, pause the video and copy this table down in your notebook and try to write it by yourself. I'm sure तुम लोग को भी काफी सारे points आ जाएंगे, और मैं जो points बताऊंगा वही सही है ऐसा नहीं, तुम लोग के भी unique points होंगे. That's also okay, but they should be right, that's it. But इसका कोई ऐसा perfect answer नहीं है. Try to write it by yourself. Okay, pause the video and write it by yourself. Again, I will wait for 5 seconds for you all to do that. Okay. Okay, so I hope you all had paused the video and you all have some of the part of this table already filled. Okay, so now we'll see what all you all could have filled in the table. Okay, so I'm not sure if you all can see this, but I am going to try to magnify some part. Okay, so पहले हम लोग एयर पोल्यूशन देखेंगे. So एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स ऑलरेडी दे दिए थे, राइट? सो मेरा पॉइंटर कहाँ पे गया? I think I can't use my pointer now when I zoom.
ओके, सो मैं क्लिक करूंगा तब वहां पे येलो कलर का एक सर्कल आ जाएगा, देयर यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, सो इफ यू सी यहाँ पे गैसेस, एयर पोल्यूशन के कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से गैसेस हो सकते हैं? देयर विल बी CO2, देयर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल मीथेन, मीथेन हम लोग ने लास्ट बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट? मीथेन का क्या फॉर्मूला है? CH4। सो वहाँ पे क्या क्या है? हाइड्रोजन है और कार्बन है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर S उसका सिंबल होता है। नेक्स्ट NOx, एक्स क्यों लिखा है? एक्स यानी एक्स यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नंबर डाल सकते हो। सो NO1 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 यानी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सो एक्स के यहाँ पे तुम लोग कोई भी नंबर डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड्स एटसेट्रा। सो ये सब गैसेस की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट सॉलिड, क्या क्या सॉलिड चीजें होती है जिससे एयर पोल्यूशन हो सकता है? सो इज डस्ट, बहुत ज्यादा डस्ट होगा। ऐश, ऐश यानी क्या? कुछ भी जलाने के बाद जो काला काला चीज बच जाता है उसको बोलते हैं ऐश। देन कार्बन, लेड, लेड इज अ lead is a type of an element, again it's not good for health, and asbestos etc. Okay, so अगर ये सब चीजें अगर मिक्स होने लग गई हमारे एयर में तो एयर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स आर डन सोर्सेज। सो कहाँ से आता है एयर पोल्यूशन? एक तो है एमिशंस रिलीज फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज। अगर केमिकल इंडस्ट्रीज में तुम लोग ने देखा लंबे लंबे चिमनी होते हैं और वहां से धुआं निकल रहा है, दैट कुड बी वन। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स यानी रिक्शा, गाड़ी, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ट्रक्स, ये सब होते हैं ऑटोमोबाइल्स, तो उसके एग्जॉस्ट में से भी निकल रहा है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस और नॉट, बट बहुत लोगों को तुम लोग ने देखा होगा कि अगर कुछ कचरा जमा है उसको जला देते हैं। कचरा फेंकना नहीं है, कचरे का कुछ करना नहीं है, तो वो लोग इजी वे में क्या सोचते हैं, इसको जला दो तो यू कैन गेट अवे फ्रॉम इट। सो उससे भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। सो बर्निंग ऑफ गार्बेज इज नॉट एडवाइजेबल। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, जब भी कोल या पेट्रोल को तुम लोग जलाओगे धुआं निकलने वाला है एंड इट इज गोइंग टू पोल्यूट द एयर। सो दीज आर द सोर्सेज, सोर्सेज यानी कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है? causes respiratory diseases like black lung disease, asbestosis, it's a little difficult to pronounce, asbestosis। Okay, so it's a type of a respiratory disease। respiratory मतलब क्या है? यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली है अगर रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई। रेस्पिरेटरी यानी समथिंग रिलेटेड टू आवर ब्रीदिंग। ओके, सो एस्बेस्टोसिस, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर एटसेट्रा। ओके, सो दिस ब्रोंकाइटिस, दिस एस्बेस्टोसिस एंड ब्लैक लंग डिजीज, सो दीज आर ऑल डिजीजेस, ये सब बीमारियां हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। नेक्स्ट कंट्रोल मेजर, क्या क्या कर सकते हैं इसको कम करने के लिए? सबसे पहली बात, ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रीडिजाइंड इन सच अ वे दैट एमिशंस कॉज मिनिमम पोल्यूशन। अगर तुम लोग ने देखा होगा कि इफ यू आर रीडिंग न्यूज, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड था अपना इंजन्स के लिए, वो उसको और बेहतर किया। सो एक स्टैंडर्ड था BS4 आई थिंक, एंड नया स्टैंडर्ड है BS6। सो BS4 वाले जो स्टैंडर्ड थे उसमें समझो अगर 100 पार्टिकल्स निकल रहे 1 मिनट में, सो नए वाले स्टैंडर्ड में सिर्फ 20 पार्टिकल्स निकलने चाहिए 1 मिनट में हर गाड़ी में से। सो जितने कम पार्टिकल्स निकलेंगे गाड़ियों में से उतना कम एयर पोल्यूशन होगा, राइट? सो ये स्टैंडर्ड्स बेहतर होने चाहिए। ओके, अगर जितना अच्छा स्टैंडर्ड होगा, जितना गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएगा कि अगर तुम लोग गाड़ी डिजाइन कर रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, तो उसमें से जो धुआं आ रहा है उसमें बहुत कम पार्टिकल्स होने चाहिए, उतना कम पोल्यूशन होगा। बट अगर उतना अच्छा तुम लोग को इंजन बनाना है, उतना पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, राइट? सो गाड़ियों का प्राइसेस बढ़ जाएगा, गाड़ी को प्राइसेस बढ़ जाएगा तो गाड़ियां कम बिकेंगी, दैट्स द प्रॉब्लम। बट इफ यू वांट लेस एयर पोल्यूशन तो तुम लोग को स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, दैट्स व्हाट दे हैव सेड। ओके, ऑटोमोबाइल इंजन शुड बी रीडिजाइंड इन सच अ वे दैट द एमिशंस कॉज मिनिमम पोल्यूशन, उसमें से जो पार्टिकल्स आने वाले एकदम कम निकलने चाहिए। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी बैन। अगर कोई भी कचरा जला रहा है उसको फाइन लगा दो, उसको बैन कर दो। ओके, emissions from contaminants from industry should be controlled। so अगर कोई भी इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री समझो, और फैक्ट्री में से बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, या फिर उसको
कंटामिनेंट्स को निकालने से पहले फैक्ट्री में से उसको एक ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कम हो जाए. सो ये सब चीज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए. सो दैट वाज आवर एयर पोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू water pollution. Actually, water pollution and soil pollution we can do together. Okay, so water pollution के examples क्या क्या है? It can be oil and its derivatives. Derivatives यानी किसी और चीज में से निकला है. Okay, so oil and derivatives यानी oil और oil में से जो जो निकलता है वो सब. ठीक है, so derivatives यानी जिसका source कुछ और है. So oil and derivatives, carbonic compounds यानी कार्बन से बने हुए compounds, heavy metals like mercury, lead, cadmium, etc. सिल्ट मतलब क्या? सिल्ट you must have studied in geography. अगर कहीं से बेसिकली सिल्ट क्या, फाइन सैंड होता है जो रनिंग वाटर की वजह से पानी के साथ बह जाता है और कहीं पे तो डिपॉजिट हो जाता है. सो दैट्स सिल्ट. व्हाट इज सिल्ट? फाइन सैंड विच इज ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर. पानी की वजह से ट्रैवल हो रहा है और कहीं पे तो जाके डिपॉजिट हो रहा है. सो सिल्ट से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है. सेडिमेंट से नहीं, जो रुक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. पैथोजेंस मतलब पैथोजेंस आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज डिसीज. तो पैथोजन एक वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिससे डिजीजेस हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है. सो ऑल दिस कॉजेस वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट क्या है? सोर्स. राइट, सोर्स मतलब कहाँ से आ रहा है. सो वाटर पोल्यूशन के जो मटेरियल्स है कहाँ से आ रहे हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी फैक्ट्री वगैरह से जो वेस्ट आ रहा है. डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो घर से आ रहा है. डोमेस्टिक मतलब घर से. ओके, सो घर से भी जो कुछ भी वेस्ट निकल रहा है, सूवेज यानी गटर्स, केमिकल्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री में से जो केमिकल्स बाहर निकल रहे हैं. पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर. पेस्टिसाइड्स, पेस्ट मतलब क्या? मैंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आई थिंक. पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स. ओके, कीड़े. सो पेस्टिसाइड्स मतलब जो कुछ भी कीड़ों को मार देगा, दोज आर नोन एज पेस्टिसाइड्स. सो जब भी कोई फसल उगा रहे हैं उस पे कीड़े नहीं लगने चाहिए, इसलिए वो लोग केमिकल्स डालते हैं, तो उसकी वजह से भी पानी कंटामिनेट हो सकता है. सो पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर. दीज आर ऑल द these are all the sources of water pollution. Next, इफेक्ट. इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. ओके, सो अगर ये रिवर में सब कुछ जा रहा है तो रिवर का इकोसिस्टम खराब होगा. अगर ये किसी लेक में जा रहा है तो लेक का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा. डिग्रेडेशन यानी क्वालिटी खराब होना. डिसरप्शन ऑफ नेचुरल फूड चेन. तो जो कुछ भी फूड चेन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है. एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टू ह्यूमंस. तो जॉन्डिस, कोलेरा वगैरह ये सब पानी की वजह से होता है जनरली. अगर पानी साफ नहीं पी रहे तो कोलेरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है. ओके, सो हमारे ह्यूमंस को डिजीज हो सकते हैं. नेक्स्ट, मेजर्स क्या है? इसको कंट्रोल करने के क्या मेजर्स है? एक तो है सूवेज ट्रीटमेंट. सो गटर का जो पानी है उसको जब सी में हम लोग डाल रहे हैं उससे पहले एक ट्रीटमेंट होना चाहिए फैक्ट्री में. सो उसमें वो गटर का पानी लेंगे, उसको ट्रीट करके उसको कम हार्मफुल बनाएंगे अलग अलग केमिकल्स यूज करके, और फिर उसको भेज सकते हैं. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ रिवर वाटर पोल्यूशन. तो रिवर वाटर में ट्राई करना चाहिए कि पोल्यूशन ना हो. ओके, लास्ट, सॉइल पोल्यूशन. सो सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है? सो फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिकल्स. अगेन ऑर्गेनिक की वर्ड का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था. व्हाट डज ऑर्गेनिक मीन? जो कुछ भी लिविंग मैटर में से है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक. ओके, नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स. अगेन अगर तुम फसल पे केमिकल्स मारोगे कीड़े नहीं आने के लिए तो वो सॉइल में जा सकते हैं. रेडियो एक्टिव मटेरियल्स. रेडियो यानी जिसमें से रेडिएशन निकल रहा है. ओके, अगेन दिस वी हैड सीन लास्ट टाइम, राइट? वी हैड सीन alpha radiation, beta radiation, gamma radiation. So these are all radioactive materials. So उसके वजह से भी soil pollution हो सकता है. And lastly, oils and tar. Tar you all must have remember वो no smoking का ad आता है, right? वैसा एक स्पंज पकड़ के उसको ऐसा घोल देते हैं और फिर उसमें से काला काला चीज निकलता है. That's tar. Basically roads बनाने के लिए जो black material यूज करते हैं that is tar and oils. So ये सबसे soil खराब हो सकता है. ओके, इसका सोर्सेस क्या है? नेक्स्ट सोर्सेस, राइट? सोर्स, या. सो सोर्सेस क्या है सॉइल पोल्यूशन के? इंडस्ट्री वेस्ट. सब जगह इंडस्ट्री वेस्ट है. इंडस्ट्री अगर खड़ी हो गई तो सब चीज पोल्यूट होने वाली है. नेक्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट. अगेन बायो मतलब क्या? बायो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स. मेडिकल यानी हॉस्पिटल रिलेटेड.
मेडिसिन रिलेटेड. सो बायोमेडिकल वेस्ट यानी अगर समझो सर्जरी करते समय कुछ वेस्ट मटेरियल्स है, किसी का टिश्यू काट दिया है वगैरह वगैरह, और इवन डेड बॉडीज, ऑल दीज आर बायोमेडिकल वेस्ट, राइट. इसके वजह से सॉइल पोल्यूट हो सकता है. एग्रोकेमिकल्स यानी एग्रीकल्चर करते समय जो केमिकल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. पेस्टिसाइड्स किसके लिए? इंसेक्ट्स को मारने के लिए. फर्टिलाइजर्स किस लिए होते हैं? ताकि सॉइल में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाए सॉइल को, ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाए. एंड लास्टली इज डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट नहीं, घर से निकलने वाला कचरा. नेक्स्ट, इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है सॉइल इरोजन, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स. रिटार्डेड यानी बहुत अच्छे से नहीं होना, इनकम्प्लीट होना. रिटार्डेड यानी इनकम्प्लीट. सो इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स. ठीक से फसल उगेगी नहीं पूरी तरीके से. नेक्स्ट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. इफ यू नो, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं हमारे टाइम पे खाना बहुत अच्छा था और न्यूट्रिशियस था. अभी का जो नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी वीक, बहुत ही इजीली बीमार पड़ जाता है. सो दैट्स पार्टली बिकॉज अभी जो फसल उग रही है उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं होते. हम जो टमाटर खा रहे हैं, जो 100 साल पहले टमाटर मिल रहा था, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉइल पोल्यूशन हो रहा है उसके वजह से. एंड लास्टली, what are the ways to control measures? Okay, so first is reduce मतलब कम चीजें यूज करो. हर 2 महीने में जाके नए कपड़े मत खरीदो, हर 2 महीने में जाके नए शूज मत खरीदो, नई प्लास्टिक की थैली मत लेके आ जाओ घर पे. सो फर्स्ट इज रिड्यूस, कम यूज करो. नेक्स्ट इज रिसाइकल. एक चीज यूज कर ली उसको भी दूसरे एक्टिविटी के लिए यूज करो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शर्ट खराब हो जाता है या फिर पुराना हो जाता है तो उसको बहुत लोग घर में साफ सफाई के लिए कपड़ा यूज करते हैं, राइट. सो दैट इज रिसाइकल. पहले तुम लोग शर्ट की तरह यूज कर रहे थे, फिर किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो. नेक्स्ट इज रीयूज ऑफ वेस्ट. तो बार बार यूज करो. ओके, सो आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट मैंने सुना है कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो लोग सॉक्स सिर्फ एक ही बार पहनते हैं. सो एक बार सॉक्स पहन लिया, निकाल, ये पूरा दिन यूज किया, निकाल के फेंक दिया, वापस सेकेंड टाइम कभी सॉक्स यूज नहीं करते हैं. सो एक ही बार यूज मत करो, बार बार यूज करो. ओके, टिल द टाइम इट इज नॉट यूजेबल. सो दीज आर द 3 things, very important things are reduce, recycle and reuse of waste. It is the best way to prevent pollution. Segregate biomedical waste. तो कचरे के डब्बे में मत डालो बायोमेडिकल जो वेस्ट है, उसको अलग से फेंको. नेक्स्ट, यूज नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो अगेन, फर्टिलाइजर्स क्या है? जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उसको मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज कर होता है, राइट. सो उसमें केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स यूज मत करो, ऑर्गेनिक यूज करो. ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जो काउडंग वगैरह से बनते हैं. ओके, सो उसमें केमिकल्स नहीं होंगे, सो इट्स बेटर. नेक्स्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट शुड बी अवॉइडेड एज इट pollutes the groundwater and also causes soil pollution. सो बहुत बार हम लोग कचरा ऐसे फेंक देते हैं. जब कचरा हम फेंक देते हैं तो उसमें से जो कुछ भी हार्मफुल चीज है वो नीचे चली जाती है, एंड नीचे क्या है? ग्राउंड में ग्राउंड वाटर होता है. सो इट कॉजेस इट कंटेमिनेट्स द ग्राउंड वाटर. हमारे ग्राउंड में जो पानी है उसको खराब कर देता है. एंड ऑल्सो कॉजेस सॉइल पोल्यूशन. वो अगर मिट्टी में चला गया वो सब वेस्ट का हार्मफुल मटेरियल्स, तो मिट्टी को भी खराब कर देगा. तो सॉइल पोल्यूशन. Lastly, limiting the use of plastics and opting for biodegradable products. Okay, so plastics जितना हो सके उतना कम यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग सुपर मार्केट में आते हैं, सो वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक का थैली, बिकॉज इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम प्लास्टिक को मिट्टी में डाल दोगे तो मिट्टी में मिक्स होने में और उसको पूरे डिकम्पोज होने में 10,000 20,000 साल लग जाते हैं. एंड तब तक वो वैसे के वैसे ही रहेगा, राइट. वेरएज अगर तुम लोग कुछ, फॉर एग्जाम्पल, केले का छिलका डाल देते हो मिट्टी में, वो 1-2 साल में वो भी मिट्टी बन जाएगा. सो इट वेरी इजीली गेट्स डिकम्पोज्ड, राइट. सो प्लास्टिक इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता. सो इसके जगह पे क्या यूज करना चाहिए? ऑप्टिंग फॉर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. बायोडिग्रेडेबल यानी सॉइल में डालोगे तो बहुत इजीली सॉइल बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. एग्जाम्पल सर, क्लॉथ. प्लास्टिक का बैग यूज करने से अच्छा कपड़े का बैग यूज करो. Okay, so these were, I don't know how to go out of the Zoom now. Okay, so ये सब क्या था? ये सब था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन के कंपोनेंट्स, सोर्स, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर. ओके, नेक्स्ट
रेडियोएक्टिव पोल्यूशन. सो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन दो चीजों की वजह से हो सकता है. ओके, सो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू टू रीजंस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल अगेन मतलब नेचर की वजह से अपने आप से हो रहा है, आर्टिफिशियल यानी हमारी वजह से, ह्यूमंस की वजह से. यूवी एंड आईआर रेडिएशंस आर नेचुरल. यूवी एंड आईआर फुल फॉर्म याद आ रहा है किसी को? यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, आईआर मतलब इंफ्रारेड. आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस इवन, आई मीन व्हाइल टीचिंग लाइट चैप्टर. यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट, आईआर मीन्स इंफ्रारेड. ओके, ये नाम क्यों मिले? कि विबग्योर का जो कलर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह वगैरह, सो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके बाहर के फ्रीक्वेंसी है इनके. सो वायलेट के ऊपर यानी अल्ट्रावायलेट, रेड के नीचे वाला यानी इंफ्रारेड. सो यूवी एंड आईआर रेडिएशंस आर नेचुरल रेडिएशंस. ओके, ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. whereas एक्सरेज एंड रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर आर्टिफिशियल. ओके, एक्सरेज हम लोग खुद बनाते हैं, राइट? सो इफ यू, तुम लोग का हड्डी वगैरह खराब हो गया, टूट गया, सो तुम लोग को एक्सरेज लेना पड़ेगा चेक करने के लिए कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी हड्डी में. सो एक्सरेज आर अ टाइप ऑफ रेडिएशन और वो हम लोग खुद बना रहे हैं मशीन के द्वारा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स आर्टिफिशियल. एंड एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में से भी आता है. सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट? एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी को ऊपर से फेंकने का, टरबाइन घूमेगा और उससे एनर्जी बनेगी. दूसरा है कोल प्लांट्स, कोल को लेने का, जलाने का, उससे गर्म हो जाएगा पानी, पानी गर्म होगा तो टरबाइन घूमेगा वेपर की वजह से और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगा. और एक टाइप का है एटॉमिक एनर्जी. वैसे ही एटॉमिक एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलने की वजह से पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो वापस वेपर की वजह से टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा. So whenever nuclear reactions happen, radiations from those plants come. कौन से टाइप के? अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्सरेज भी निकलते हैं उसमें से, न्यूट्रॉन रेडिएशन भी निकलता है. different types of radiations come out from those plants. So these are examples of artificial radiations. Next जो तीन नाम दिए, Chernobyl, wind scale and 3 miles island. Chernobyl, wind scale and 3 miles island. सो ये सब बेसिकली पावर प्लांट्स थे, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स थे, जहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे डिजास्टर हो गया. ओके, सो उसकी वजह से, सो मिसहैप्स है एक्सीडेंट, डिजास्टर. मिसहैप्स आर मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट. ये सबसे बड़े एक्सीडेंट्स हुए दुनिया में आज तक. ओके, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दीज एक्सीडेंट्स. तो अगर न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर निकल गया इन प्लांट से और अगर तुम्हारी बॉडी को हिट कर लिया, तो तुम लोग को कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. और तुम्हारे जो बच्चे होंगे, डॉटर्स, सन्स, उनको भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारे जीन्स को ऑल्टर कर देता है रेडिएशन. दैट्स व्हाई दीज आर वेरी डेंजरस. तुमको भी प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशंस को भी प्रॉब्लम होगा. दैट्स व्हाई न्यूक्लियर रेडिएशन इज वेरी डेंजरस. और इसलिए न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट्स है उसको बहुत अच्छे से इंजीनियर करना पड़ता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है. लेट्स मूव अहेड. सो रेडिएशन हो गया तो क्या क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, कैंसरस अल्सरेशन. कैंसरस तो हमें पता चल जाता है. कैंसरस मतलब जिससे कैंसर होगा. अल्सरेशन मतलब क्या? अल्सरेशन यानी बेसिकली टिश्यू में ब्रेक आ जाना. ओके, सो बेसिकली अगर समझो तुम लोग को बहुत ज्यादा खुजली आ गई कहीं पे, तो तुमने बहुत ज्यादा खुजा तो वहाँ पे खड्डा हो जाएगा, राइट? उसको हम लोग अल्सर भी बोल सकते हैं. अगर बहुत सारा टिश्यू वहां से निकल गया, सो बोलेंगे यहाँ पे खड्डा हो गया, सो वी कैन कॉल इट एज एन अल्सर. सो कैंसर की वजह से अल्सर बन सकता है बिकॉज ऑफ हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरे. इसलिए अगर तुम लोग ने देखा होगा, जब भी तुम लोग एक्सरे लेने जाते हो, जो ऑपरेट कर रहे हो मशीन को, वो एक ब्लैक दरवाजे के पीछे चला जाता है वो एक्सरे मशीन यूज करने से पहले. सो ब्लैक दरवाजा किससे बना है? लेड से बना है. और लेड से रेडिएशन इजीली पास नहीं होता, तो जो यूज कर रहा है एक्सरे मशीन, वो सेफ हो जाता है. हम पे तो एक्सरे डायरेक्टली आ रहा है इसलिए एक्सरे का फोटो आ रहा है, बट हम पे जो एक्सरे आ रहा है वो रोज नहीं आ रहा है ना, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, बस वो रोज ऑपरेट कर रहा है उस एक्सरे मशीन को. सो उसका डेंजर बहुत ज्यादा है. सो इसलिए वो हमेशा एक लेड के दरवाजे के पीछे जाके उसको ऑपरेट करेगा, वैसे हम लोग के ऊपर एक्सरेज आ जाएगा. नेक्स्ट, टिश्यूज इन द बॉडीज आर डिस्ट्रॉयड. रेडिएशन की वजह से टिश्यूज खराब हो जाएंगे. जेनेटिक चेंजेस आई टोल्ड, राइट? रेडिएशन तुम्हारी बॉडी पे आ गया, तुम्हारी बॉडी में जितना भी डीएनए है, जीन्स है, वो सब
ऑल्टर हो सकते हैं, इसके वजह से रेडियो एक्टिविटी की वजह से। एंड विजन कैन बी एडवर्सली इफेक्ट, विजन यानी दिखना, सो दिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। Okay, let's move ahead. There's this question under use of brain power on page number 40. So again, same instructions. Take some time, pause the video and try to write the answer by yourself. Again, बहुत ज़्यादा technical नहीं है, you all can write this in your own words, come up with your own points. मैं जो points बताऊंगा वही सही है ऐसा नहीं, तुम लोग भी points अपने आप से लिख सकते हो. All the only condition is they should be right. Okay. So yeah, pause the video and try to write down what answer you can come up with. I'll give you 5 seconds. 5 seconds to pause and write the answer. Okay, hope you all pause the video and have written the answer. ये मेरे को notes में दिखते नहीं है तुम्हारे. When I see your notes, I should see your attempt of the answer and then the correct answer which you all copy from the slide. Okay. So this is the answer I came up with. Firstly, why is it said that pollution control is important? तो सबसे पहली बात pollution से क्या problem हो रही है ये बताना पड़ेगा, right? So the first point I've written is pollution affects the life of human beings and other living organisms. Pollution की वजह से humans को भी problem आता है और दूसरे living organisms को भी problem होता है. Okay. Next, activities like mining have negative impact on the ecosystem. Mining जैसी चीजें करके ecosystem पे बहुत ही negative impact होता है. Not only on ecosystem but also on biodiversity and natural resources. Natural resources यानी nature में जो जो चीजें जिसको हम लोग use कर सकते हैं, those are called as natural resources. For example, wood. Wood कहाँ पे है? Nature में, right? So that is an example of natural resources. Biodiversity मतलब क्या? Biodiversity is made up of two words, okay? Bio and diversity. Bio मतलब मैंने तुम लोग को last time बोला था क्या है? उसका मीनिंग बायो मतलब है लिविंग, एंड डाइवर्सिटी यानी में कितना डाइवर्सिटी यानी अलग होना. सो कितने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. भी अगर तुम लोग देखो कोई भी प्लांट ले लो, प्लांट में भी कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट? अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं. सो बहुत ज्यादा डाइवर्स है. डाइवर्स यानी बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें मिलती है. सो बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So activities like mining have negative impact on what? Ecosystem, biodiversity and natural resources. Next, pollution leads to loss of biodiversity and global warming. जो अलग अलग चीजें वो कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, राइट? बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स मर जाते हैं और फिर नए उस टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स नहीं बनेंगे. सो बायोडाइवर्सिटी है जो अलग अलग टाइप्स के वो कम टाइप के हो जाएंगे. सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग यू नो, राइट? पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सो पोल्यूशन की वजह से ये भी हो रहा है. नेक्स्ट, ह्यूमंस को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ह्यूमन हेल्थ इज लार्जली इम्पैक्टेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. हमारे ह्यूमंस के हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? रिडक्शन ऑफ एयर क्वालिटी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज पोजेस अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ. आज की दुनिया में बहुत सारे लोग रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से मरते हैं. रेस्पिरेटरी डिजीज यानी सांस लेने में जिससे प्रॉब्लम हो सकता है वैसे डिजीजेस. और ये जनरली क्यों होता है? क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है. दिल्ली में एवरी ईयर इतना पोल्यूशन हो जाता है विंटर में दैट यू ऑल कांट इवन सी अ पर्सन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इतना धुआं हो जाता है. सो क्वालिटी ऑफ एयर की वजह से तुम्हारा हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. पानी अगर तुम लोग अच्छा नहीं पी रहे हो, अगेन हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. So reduction in quality of air, water and other resources pose a threat to human life, and because of all these reasons, hence pollution control is extremely important. Again, if you all have sincerely written the answer, जैसे मैंने बोला था pause करके, you all can see, you all should check तुम लोगों ने point wise लिखा है क्या आंसर. Next you should see कितने points लिखे हैं. Next you should see important keywords तुम लोगों ने underline किए क्या. This is how a good answer for your board exam looks like. Point wise छोटे छोटे points and underlining the keywords. Okay, let us go ahead. Okay, so that is it for today. These are the words we learned. First is derivative. Derivative मतलब किसी दूसरे चीज से आना. So हम लोग ने oil derivative देखा था, right? Oil derivative यानी किसी दूसरे चीज में से आना. Silt मैंने बोला था fine sand
कैरिंग बाय रनिंग वाटर, पानी की वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एयर कहीं और कहीं पे तो डिपॉजिट हो रहा है। पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीजेस, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, जिससे बीमारी हो सकती है। अल्सरेशन यानी मैंने बोला था खड्डा हो जाता है। बेसिकली क्या है, हमारे मेम्ब्रेन जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है उसमें ब्रेक आता है, यानी यहाँ पे खड्डा आ जाएगा। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स वी लर्न टुडे। ओके, so yeah, that's it for today. Hope you all understood everything and see you tomorrow. See you guys. Bye.